ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا، فإنی اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، وانا اصوم الدہر، میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم صرف 3 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ رکھو گے تو تمہیں 10 دن کا ثواب مل جائے گا، اور 10 دن کا ثواب ملے گا۔ مہینہ میں 3 روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول اور مجھے اجازت دیجیے، میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں، چلو ایک کام کرو، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناکا کرو، ایسا کرو صوم داؤدی پر عمل کرو، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ زندگی بھر روزہ رکھو اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرو، ایسی بات اسلام میں نہیں ہے، ایسا کرنے پر اسلام آپ کو وارتا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسلام نے جس طرح طور طریقہ سکھلایا، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم نے محمد رسول کو نمونہ کے لیے ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا کر بھیجا ہے، بیوی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، ان تمام چیزوں کا حل اگر کسی دھرم میں ملے گا، کسی مذہب میں ملے گا تو اسلام میں ملے گا، باقی کسی اور میں نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ہر دھرم میں ہر مذہب میں شادی کی گنجائش تو ہے، 4 اور اس سے بھی زیادہ گنجائش تو ہے، لیکن طریقے الگ ہو سکتے ہیں، صورتیں الگ ہو سکتے ہیں، زیادہ کی شکلیں ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ تمہیں برابر دینے کا حق ہے، اگر تم 2 شادی کرتے ہو تو تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں اسلام ہی وہ دھرم ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تمہارے لیے کمپلیٹ مذہب ہے، اسلام تمہارے لیے مکمل دھرم ہے۔ 3 شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیسا عمل کرتے ہیں دن میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں دن میں ایسا عمل، رات میں ایسا عمل، انہوں نے کہا تکالوہا، بہت کم سمجھا، یہ اللہ کے رسول ہے، ہم کہا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ کے رسول جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، بس اتنا ایسا عمل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، عبادت میں لگا رہوں گا، جنگلوں میں چلا جاؤں گا، صرف عبادت صرف عبادت صرف عبادت۔ تو اللہ کے رسول آئے اور کہا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی، انتم قلتم الذین کذا وکذا، تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کہی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے لوگو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن سنو ولکنی اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر اور افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج میں نکاح بھی کرتا ہوں، وارقد میں سوتا بھی، واصلی اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے، لیکن ہم اور آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ۔ آئے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتے، امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک ایسا انسان تھا جس نے 99 انسان کو قتل کیا تھا۔ 99 انسان کو قتل کرنے کے بعد دل میں یہ ارمان جاگا، دل میں خواہش جاگی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، تقوی پیدا ہوا، اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اللہ میں زندگی بھر لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر چھری چلاتا رہا، ہسوے چلاتا رہا، لوگوں کے گردن پر پستول وغیرہ سے لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر وار کرتا رہا، اٹیک کرتا رہا، حملہ کرتا رہا۔ اے اللہ میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرے دل میں ایمان کی مٹھاس زیادہ ہونی چاہیے۔ اس جستجو میں نکلتے کہ راستے میں کوئی عالم مل جائے، یہ بڑا سا مجمع کہاں مل جائے، اور اس مجمع میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے، ان علماء میں سے فتویٰ پوچھ لیں گے، مسئلہ پوچھ لیں گے کہ اتنے آدمی کو قتل کرنے کے بعد کیا ہمیں جنت مل سکتی ہے یا نہیں، اللہ اپنے سائے کے نیچے مجھے جگہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس جستجو میں نکلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ فلاں بتاؤ کہیں ایسا عالم ہو جو ہمیں ان تمام مشکلات کا حل بتائیں گے، اور ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کے بدولت ہمیں کیا ملے گی، کہ ہمیں جنت اور جہنم دونوں میں سے کیا ملے گی، کہ ہمیں جنت مل سکتی یا نہیں، اس چیز کی جستجو میں نکلتا ہے۔ بہت دن کے بعد ایمان جاگا، پیدا ہوا، وہ آگے گئے، لوگوں نے بتایا
کہ फला जगह पे एक राहिब है, सूफी साहब है, नमाजी है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, सूफी साहब है, वहां जाइए। वो आलिम नहीं था, बड़ा आलिम नहीं था। एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर ज्यादा आपके पास सलाहियत नहीं है, तजुर्बा नहीं है और आप डॉक्टरी लाइन में उतर जाएंगे तो आप मरीजों के लिए क्या बनेंगे? रहमत बनेंगे कि जहमत? और कोई अगर मुफ्ती वो जानता ही नहीं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और किसी को गलत मसला बताएंगे तो ईमान खतरे में जाएगा कि अच्छे में जाएगा? तो मेरे भाइयों, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो मेरे भाइयों, राहिब का जब पता बताया, वो शख्स गए उसके पास और कहा कि साहब मैंने 99 इंसान को कत्ल कर दिया, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है या नहीं? क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? इतने लोगों का कातिल, इतने लोगों का कत्ल करने वाला इंसान यहाँ आया, नहीं तुझे कोई यहाँ तेरा रास्ता नहीं, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार जब मुझे जन्नत मिलेगी ही नहीं तो तुम भी इस दुनिया में बच के क्या करोगे? तलवार निकाली और उसको ही मार दो। तो मेरे भाइयों, जरूरी है कि आप जब जो चीज जान ले उसी चीज का फतवा दें, वरना फतवा मत दीजिए, वरना वही हाल होगा। जब मौलवियों को छोड़कर दूसरों को तरजीह दी जाने लगेगी, दूसरों से फतवा पूछे जाने लगेंगे, तो मेरे भाई और वो फतवा देंगे, फजल्लू वजल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, वो इंसान फिर दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या बताओ, मैंने 100 इंसान को कत्ल कर दिया है, 100 इंसान को मार दिया है, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं? कोई ऐसा आलिम बताओ उसके पास मैं चलूं। उसने बताया, जाओ, चापी में एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ बड़े बड़े उलमा की शिरकत है, बड़े बड़े उलमा शामिल है, बहुत मशहूर माया नाज खतीब वहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आलिम आए हैं, वहाँ जाइए, मसला पूछिए। वह इंसान उसकी तरफ जाता है, उस जुस्तजू में जाता है कि कोई रिहा मिल जाए, जन्नत जाने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई गुंजाइश मिल जाए, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, वहाँ जाकर फतवा पूछ लूंगा। मेरे भाइयों, लोगों ने एक आलिम का राह बतलाया, आलिम की राह बतलाए, आलिम का रास्ता दिखलाया, वो इंसान चला जाता है। जाने के बाद आधा रास्ता तय करता है और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, रास्ते ही में मौत आ जाती है। आए लोगों, हम और आप ये सोचते हैं कि हमारी नेकियां कहाँ चली जाती है, हमारा गुनाह मिटने वाला नहीं है, हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने बड़े पापी हैं, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा या नहीं? सुनिए मेरे भाइयों, वो इंसान इस राह में और इस नीयत के साथ इस जुस्तजू से निकलते हैं कि अच्छा आलिम मिल जाए, हम वहाँ दीन की बातें सीख कर ईमान ले आए, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखें और ईमान वाले बन जाए। मेरे भाइयों, आधा रास्ता ही तय किया था, आधा रास्ता ही क्रॉस किया था, कटिहार ही पहुंच पाया था, रास्ते में मलकुल मौत उनके पास आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मेरे भाइयों, जब मौत हो जाती है, जिस इंसान की दुनिया में जब मौत हो जाती है, दो तरह का फरिश्ता आता है। अगर नेक हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अगर गुनहगार हो तो जहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अजाब का फरिश्ता उनके पास आएगा। अजाब का फरिश्ता भी उस जगह पे आया और रहमत का फरिश्ता भी आया, जन्नत का फरिश्ता भी आया और जहन्नम का भी फरिश्ता आया। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा कि मैं इसे जन्नत की तरफ ले जाऊंगा, मैं इन्हें इल्लीन में दाखिल करूंगा। जहन्नम का फरिश्ता, अजाब का फरिश्ता कह रहा कि नहीं, इन्होंने दुनिया में 100 इंसानों का कातिल, 100 इंसानों को कत्ल करवाया था, 100 इंसानों को कत्ल किया था, आज ये कैसे जन्नत जा सकता है? तो मेरे भाइयों, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आया और उन्होंने रास्ता बता दिया, तरीका बतला दिया। देखो, इस रास्ते को मापा जाए, कटिहार और पूर्णिया के बीच में ये तय होने वाले रास्ता को मापा जाए, अगर नेकियों की तरफ, उन उलमा की तरफ बढ़ने वाले रास्ता अगर ज्यादा ही क्रॉस किया होगा, उलमा की तरफ ज्यादा ही गया होगा, उनका हालत ईमान में अगर मौत आई होगी, ज्यादा हालत ईमान में मौत आई होगी, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। अजाब का फरिश्ता ने, रहमत का फरिश्ता उनकी रूह को ले जाएगा। और अगर इधर ही ज्यादा करीब रह जाएंगे तो उन्हें अजाब का फरिश्ता लेकर जाएगा, जहन्नम का फरिश्ता लेकर जाएगा। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हमें और आपको ये बतला रहे हैं कि हम और आप कितने तकवा और तहज्जुद गुजार हैं। हम हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि कब करें। इसलिए इल्म सीखना हर इंसान के लिए जरूरी है, लाजमी है मेरे भाई।
कटिहार में ट्रेन लगी हुई है, हमें और आपको इल्म नहीं है, हमें पटना जाना है, एक ही तरफ गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है, एक गाड़ी पटना की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म हो तो हम सही वक्त पे पटना पहुंच सकते हैं। इल्म ना हो हम जब चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए और हमें कहां से कहां लेके जाए। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है, हमें और आपको इल्म से जुड़े रहना चाहिए। इल्म ही वो चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत ऐसे है, आबिद पर अगर कोई आलिम और कोई आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सूफी, राहिब, मेरे भाइयों 14वीं रात की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरह है उस तरह मेरे भाइयों इतना सा फर्क बतलाया है। लेकिन हम और आप इल्म से बहुत कोसों दूर चले गए, इल्म से पीछे चले गए। आप जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, तालीमी मायार कहां से कहां चले गए हैं। वो कुछ दिन वहां सफर कर रहे थे, ट्रेन में कुछ लोग आए टिकट दिखाने के लिए, लड़का लड़की एक ही जगह पे बैठा हुआ था, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, टिकट में हेरफेर हो गया, तब्दीली हो गए। जो लोग आए थे मामा शक्ल में, नाम नहीं लूंगा वरना मुकदमा होता है, वैसे लोगों को अंदर डाला जाता है, टिकट चेक करने के लिए आए। होना ये चाहिए था कि अगर मामला यहाँ तक आ जाए, लड़का लड़की दोनों अगर एक ही जगह पे हो तो हम और आप क्या कहेंगे, खड़े हो जाओ। दोनों अगर एक ही जगह हो तो कहेंगे कि खड़े हो जाओ। अरे लड़का अगर कहीं जा रहा है तो कहेंगे जा रहा है, और लड़की अगर कहीं जा रही है तो जा रही है, और दोनों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जा रहे हैं। तो उस जगह पे उन कमीनों ने क्या किया, क्या कहा जानते हैं कि चलो खड़ा खड़ी हो जाओ। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल में कुर्सी थमा दिए गए हैं। स्कूल में फला स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था, आप नहीं जान पाएंगे, शायद उलमा इस चीज को समझ पाएंगे। इंटरव्यू लेने के लिए आए, बोर्ड में एक चीज लिखा NATURE, और सब विद्यार्थी से पूछ रहा है, सब स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या लिखा है। कोई नहीं पढ़ पाया कि ये नेचर है, कोई नहीं पढ़ पाया। सब कह रहा है कि नटूर है, कोई नटूर है, कोई कुछ पढ़ रहा था। जब टीचर के पास आया, अध्यापक के पास आया, उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चों की ऐसी स्थिति क्यों है, स्कूल की स्थिति क्यों है, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। टीचर क्या कहती है जानते हैं? टीचर कह रहे कि अगर नौकरी से हमें बर्खास्त करोगे तो हमारा फुटो रोके क्या होगा। तुम्हारे भाइयों ऐसी ऐसी सूरत हाल है। आइए मैं एक वाक्य बता रहा हूँ गौतम बुद्ध के सिलसिले में। गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा कह दिया था 32 आगम सूत्र के अंदर, उनमें से एक में ये वाक्य आज भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप जो एंकर है बहुत बहस करती रहती है। गौतम बुद्ध ने एक बात लिख दी थी कि एक इंसान को 4 पत्नियां होना जरूरी है। इसके ऊपर काफी देर तक बहस चली। 4 पत्नियां, तो गौतम बुद्ध ने आगे तशरीह भी किया 4 पत्नियां कैसी थी। एक इंसान था, 4 पत्नियां थी, बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करते करते जब मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, मृत्यु का समय करीब आया, उस आदमी ने अपने 4 बीवी को एक एक करके बारी बारी अपने करीब बुलाया और कहा, देखो बीवी, मैंने तुमसे जिंदगी भर मोहब्बत की, मानते हो? कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सामान फला जगह से, फला बाजार से खरीद कर लाकर देता था, मानते हो? कहा क्यों नहीं। कब मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता था, हालांकि माँ बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था, कुछ लोग होते ही है। कहा मानती हूँ। बीवी एक काम करो, मैं मरने जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, शमशान घाट में भी तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपनी मेरे साथ जाकर चीता जला देना। मैं जब मुझे जलाया जाए, मेरा चीता जलाया जाए, तो तुम भी उस अपने शव में, मेरे शव में तुम भी कूद जाना और बलि दे देना, तुम भी मेरे साथ उस दुनिया में चलो। गोया कि गौतम बुद्ध का ईमान था इस बात पर कि उस दुनिया जाना है। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाने के लिए तैयार हो? उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। आए मेरे शौहर, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए और हमारे लिए मंडला रही थी, ये मानती हो? तुम दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते थे, ये भी मानती हो? दुनिया में फला जगह से सामान खरीद कर लाकर मुझे देते थे, अपने माँ बाप को छुपा कर मुझे लाकर देते थे, माँ का दरवाजा क्रॉस करके मेरे कमरे में लाकर मुझे देते थे, और मैं खुश हो जाती थी, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन आज तुम इस दुनिया से जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। जाओ, तुम मर रहे हो, तुम जाओ मरो, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती।
उसने कहा बीवी क्या मोहब्बत की यही मिसाल है? कहा ऐसी ही मिसाल है। दुनिया में इंसान एक इंसान का उस वक्त तक कर ले है जब तक वो इंसान उसको कुछ देता रहता है और जब तक उसको कुछ मिलता रहता है। आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती और आप भी मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, लिहाजा आप जाइए, मैं आपके साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया और अपने करीब बिठाया और कहा मोहतरमा देखो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कहा कैसे? कहा तुम्हारी पहली बीवी ने क्या बताया? कहा वो कहा कि नहीं जाएगी। कहा तुम जाओगी? कहा हाँ मैं जाऊँ। नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं जाऊँ, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तीसरी बीवी को बुलाया, तीसरी बीवी ने भी वही जवाब दिया जो दूसरी बीवी ने जवाब दिया, जो पहली बीवी ने जवाब दिया वही तीसरी बीवी ने जवाब दिया। लेकिन तीसरी बीवी का जवाब थोड़ा सा हटकर ये था, उन्होंने कहा देखो मेरे शौहर, आए मेरे पति, मैं आपके साथ जिंदगी भर रही, आप मेरा जीवन साथी है, आपके साथ मैंने 60 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन आप इस दुनिया से आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इतना कर सकती हूँ कि जब आपकी शव को जलाया जाए, जब आपकी लाश को जलाया जाए, शमशान घाट में आपकी चिता को जलाया जाए तो मैं वहां तक जा सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उस दुनिया जाने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बीवी थोड़ी सी लाइन पे आया और क्या कहा कि मैं शमशान घाट तक जा सकती हूँ। चौथी बीवी को बुलाया, कहा बीवी मैं 3 बीवियों से ज्यादा मोहब्बत करता था लेकिन तुमसे नफरत करता था। तीनों बीवी ने इनकार कर दिया, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? कब मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? तीनों बीवी ने आपका इनकार कर दिया। चलो एक काम करते बीवी, ऐ मेरे शौहर, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चौथी बीवी ने हाँ भर दिया। अब सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या बताना चाहा और क्या मकसद था 4 पत्नियों से मुराद मेरे भाइयों। अब इस जगह पे पॉइंट की तरफ आता हूँ। 4 पत्नियों से मुराद गौतम बुद्ध का क्या था? पहली पत्नी से मुराद इंसान का जिस्म है। इंसान जब मरता है तो अपने जिस्म की तरफ देखता है, अपने पैर की तरफ देखता है, अपने हाथ की तरफ देखता है, हथेली की तरफ देखता है, अपने बालों की तरफ देखता है, अपने उंगलियों की तरफ देखता है, उंगलियों के पोरों की तरफ देखता है और सोचता है आए हाथ, दुनिया में मैं तुम्हारे जरिए से पैसा कमाया करता था, दुनिया में तुम्हारे जरिए से लोगों को कभी कभी नाजायज थप्पड़ भी मारा करता था, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कब्रिस्तान की तरफ लोग ले जाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? हाथ जवाब दे देगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, पैर जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता। इन बालों की तरफ नजर दौड़ा के देखेगा, आए बाल, मैं जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर बालों में कंघिया करता रहा, सरों में तेल लगाया करता रहा, फला स्टाइल में बालों को कटिंग करके मैं करवाया करता था, लेकिन आज तुम इस जमीन पे पड़े रह जाओगे, मुझे उस दुनिया में जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? बाल जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक मैं तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ था तुम देख रेख करते थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कब्र में मुझे रख दिया जाएगा, 3.5 गज जमीन में मुझे रख दिया जाएगा, उसी में हम पड़े रह जाएंगे, तुम्हारी रूह कहाँ कहाँ भटकेगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और हम इधर जमीन में ही पड़े रह जाएंगे। वो इंसान तमन्ना करेगा और अपने पैर की तरफ देखेगा, जिस्म की तरफ देखेगा। मेरे भाइयों, क्या कोई इंसान अपने जिस्म के साथ ऊपर को जा सका है? नहीं जा सका है। गौतम बुद्ध के अंदर भी ये ईमानी जज्बा था, वो इंसान का जिस्म है। हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए, से मतलब गौतम बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि पहली पत्नी से मुराद इंसान का बदन है, इंसान का जिस्म है, आपके साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं। दूसरी पत्नी इंसान का माल है, इंसान की दौलत, इंसान की प्रॉपर्टी है। जब इंसान मरता है माल की तरफ देखता है, जमीन की तरफ देखता है, मकान की तरफ देखता है, बिल्डिंग की तरफ देखता है। जो बिल्डिंग उस मालिक के फेस के बगैर, चेहरे के बगैर खुलता भी नहीं था, उनका दरवाजा लॉक हो जाता था, उनकी परमिशन के बगैर कोई उसके घर में नहीं आ सकता था, लेकिन उस घर को छोड़ते अलविदा कह जाएंगे
और कहेंगे आए घर मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? घर का भी वही जवाब होगा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जमीन का भी वही जवाब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भाइयों, दुनिया की तैयारियां कर लीजिए। दुनिया में तमाम सामान को छोड़कर हम और आप जा रहे हैं, लेकिन हम और आप आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। तीसरी पत्नी से मुराद इंसान के रिश्तेदार है। बाप है, भाई है, माँ है, बहन है। बाप से इतनी मोहब्बत है, बाप कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो। माँ से इतनी मोहब्बत है, बारिश के कतरों में माँ भीगती हुई अपने परों के नीचे, आंचल के नीचे अपनी औलाद को छिपाए रखती है मेरे भाइयों। लेकिन वही औलाद जब मरने के करीब आए, जब मर जाएंगे, माँ मर जाएंगी, आप मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तान तक जा सकती है, उसके अलावा नहीं। तीसरी पत्नी ने कहा था कि मैं शमशान घाट तक तो जा सकती हूँ, उसके अलावा नहीं जा सकती हूँ। और चौथी पत्नी से मुराद इंसान का अमाल है मेरे भाइयों, टूटी फूटी अमाल। चाहे कुछ भी करो, वो आपके साथ जाएंगे और उसके अलावा कुछ अमल आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं इल्मी सिलसिले में तकरीर कर रहा था, एक ही तकरीर में कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, चार पत्नियां से मुराद यहाँ गौतम बुद्ध का ये बताना मकसूद था। वैसे आज सब पे परेशान है, इस्लाम में मना नहीं किया, चार पत्नी आप भी रखिए, लेकिन बीवियों से सब परेशान रहते हैं। एक मरतबा एक मजलिस में एक साल बहुत बेतहाशा बारिश हुई, मजमे से आवाज आई कि इस साल बेतहाशा बारिश हुई। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, एक मुल्ला उठकर खड़े होकर कह दिए कि जमीन में जो कुछ है इस दफा बाहर निकल आएगा। तो एक आदमी मन ही मन में डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तीन पत्नियां जमीन के अंदर वो ना निकल आए। तो मेरे भाइयों, बीवियों से सब कोई परेशान रहते हैं, तो जायज है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबको हुकूक बराबर देना है मेरे भाइयों। वो चीज इस्लाम यही ना आपको, हमें और आपको सिखाए। तो इल्म की फजीलत है कि इल्म मेरे भाइयों हमें और आपको सीखना जरूरी है, और इल्म के लिए हमें और आपको पैसा लुटाना जरूरी है। हम और आप जब तक पैसा नहीं लुटाएंगे, इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। उस वाक़या को याद करो मेरे भाइयों, एक शख्स था जिनका नाम अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख है उनका नाम मेरे भाइयों। जिहाद के मैदान में जाता है, इल्मी तकरीर में आपको करूंगा, आपके सामने आप समझ पाए या ना पाए। जिहाद के मैदान में जाता है, अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है ताखिर हो जाए, आने में लेट हो जाए, एक काम करो तुम्हें मैं 30,000 दिनार देकर जाता हूँ, तुम इसी से खर्चा चलाना। पेट में बच्चा पल रहा था, कहा कि इसी से खर्चा चलाना, अपना खर्चा भी चलाना, पेट में जो बच्चा पैदा होगा उसका भी खर्चा चलाना। जिहाद के लिए जाता है मेरे भाइयों, बीवी बच्चों को कुर्बान करके, और जाने के बाद जिहाद में मसरूफ हो जाता है, और 27 साल के बाद घर आता है। घर आने के बाद जो पेट में बच्चा पल रहा था वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी माँ उसकी तरबियत करती है, और तरबियत करने के बाद एक बहुत बड़ा आलिम बना देता है। आज आपके ज़ीनत स्टेज में जो उलमा मशहूर मारूफ नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं माओं का नतीजा है, इन्हीं माओं का करम है। अगर माँ ना पढ़ाए तो मेरे भाइयों मैं दावे के साथ कहता हूँ बाप नहीं पढ़ा सकता है। इस चीज का एक्सपीरियंस आप लोगों को है या नहीं? मुझे अच्छी तरीके से है, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया इस चीज का एहसास। तो मेरे भाइयों, माँ होकर मेरी बहनों अगर आवाज पहुंच रही है तो सुनिए, 27 साल के बाद उसका शौहर घर में आया, जैसे घर में प्रवेश किया उसका बच्चा बड़ा हो चुका था। उनका नाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम बन चुके थे। मस्जिद नबवी में हल्का लगाकर लोगों को कुरान और हदीस का दर्स दे रहे थे। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत उसके हल्के में, उसके दर्स में बैठे रहते थे और दर्स सुनते थे। मेरे भाइयों, जब आमना सामना हुआ, घर का दरवाजा खुला गया तो कहा कि मेरे घर में अजनबी आदमी, बाप बेटा की मुलाकात हुई तो बाप ने बेटा को नहीं देखा, बेटा ने बाप को नहीं देखा। अजनबी आदमी, बेटा कहे तू मेरे घर से कैसे आया? अजनबी आदमी, बेटा कह रहा है मुझे पूछ रहा है ये मेरा घर है, तू कहां से आया बता। दोनों में लड़ाई होने के करीब है मेरे भाइयों। गांव में आवाज दी गई, उनकी माँ बाहर निकली, रबिया की माँ बाहर निकली, दौड़ते हुए आए और शौहर को देखकर पहचान गए और अपने बेटे से कहा बेटा ये वही तुम्हारा बाप है जो तुम मेरे पेट में पल रहे थे, और तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर जिहाद के मैदान में चला गया था, और आज 27 साल के बाद आए। तो मेरे भाइयों, आकर जायजा लिया कि बीवी 30,000 दिनार मैं तुम्हें देकर गया था, बताओ तुमने
उस पैसे का क्या किया? बीवी कहती है मेरे शौहर मैं आपको हिसाब नहीं दे सकती है, लेकिन एक काम जरूर कर सकती हूँ, आप मस्जिद नबवी में जाइए, वहां बैठे रहिए, आपको पता चल जाएगा मैं उस पैसे को जमीन के अंदर दफना दिया हूँ। मेरे भाइयों, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहता है, और रबिया उनका बेटा वाज नसीहत करता है, कुरान और हदीस का दर्स देता है लोगों को। ये आदमी सोचता है ये लड़का कौन है, अच्छी तकरीर करता है, अच्छा दर्स देते हैं। वो मन ही मन में सोचता है या अल्लाह कहीं ये मेरा बेटा ना हो जाए, या अल्लाह अगर मेरा ये बेटा होता, काश के मेरा बेटा होता। मेरे भाइयों, जब पूछा गया कि ये कौन है, बताया कि ये तुम्हारा बेटा है, बेटे से गले मिलाए का बेटा, जो मैं ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब सच निकला है। अल्लाह ने वो हकीकत में कर दिखाया। जल्दी से घर में आया और बीवी को कहा, बीवी अल्लाह की कसम तुमने 30,000 दिनार मां सय्यती ही तुमने बर्बाद नहीं किया है, तुमने इसको सही रास्ते में लगाया है। लेकिन हमारी और आपकी सूरत हाल ये है कि हम तालीमी मैदान, इल्मी मैदान, जो लड़का आपके लिए शिफात का जरिया बन जाए, हम और आप उसके लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं। स्कूलों में 500 रुपया, ट्यूशन में हम 1000 रुपया खुशी खुशी दे सकते हैं, लेकिन इन बेचारा मदारिस में इन टूटी फूटी चटाइयों में बैठकर दर्स देने वाले उलमा की हम इज्जत नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, यही वो उलमा है, अगर आपके अंदर बाकी है तो इस्लाम बाकी है। मेरे भाइयों, इसलिए हमें और आपको इल्म की कदर करनी चाहिए।